web app. So we will have a web app, okay, and ये web app किस में हो सकती है? I have told you कि it can be Streamlit or it can be Flask. Okay, there are two options: Flask, Streamlit. I'm not preferring Django because Django is too for those people who are proficient in website development. So we are not going for the Django way. It's like we are going for Flask and Streamlit. And there is also this case of database. So you'll need a database. Okay, so the database will be I have told you it will be SQLite or database and web app. We are using it with the help of what? SQL Alchemy, जो कि हमने आपको लास्ट एपिसोड में बताया था. ओके, SQL Alchemy I told you कि how it works. I hope so आपको पता है. एंड इसके अलावा अब एक लास्ट चीज़ जो बचती है किसी भी प्रोजेक्ट, मतलब देर इज़ सो मच बैकग्राउंड लॉजिक, उस पर हम आएंगे. लेकिन एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट बची हुई है वो है कि देर इज़ समथिंग कॉल्ड डिप्लॉयमेंट. ठीक है, देर इज़ समथिंग कॉल्ड डिप्लॉयमेंट ऑन द क्लाउड. तो हम जो है डिप्लॉय करने की बात कर रहे हैं. हाउ वी विल डिप्लॉय इट ऑन क्लाउड. Deploy. Okay, so for deploying we have options like there is one option called Docker. नाम सुना है क्या? Then we have Heroku का नाम आपने सुना होगा. तो Heroku is used for deploying your web application online. ठीक है, so we are going for that. नॉट दैट कि हम डॉकर यूज़ नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं, बट डॉकर टेक्स अ लॉट ऑफ स्पेस एंड टाइम वेस्ट करता बहुत है. तो वी आर गोइंग टू यूज़ दिस विल हेल्प अस टू मेक आवर वेब ऐप यूजेबल फ्रॉम एनीवेयर ऑन द प्लानट, एंड यू कैन एक्सेस योर वेब एप्लीकेशन like you visit a website. So this is the thing that I wanted to tell you. Okay, so how we will do that is important. This is going to be not a difficult project, it's going to be easy, but we are not going to use Streamlit today. Even Streamlit can be used, but we are not going to. Okay, we are going to use Flask. यहाँ मैं लिख देता हूँ कि we have options like Flask for web app and Streamlit. For every project that I'm talking about, we can have options like this. Few projects have exceptions, but we are not considering that. Okay, so let's start with this. This will be all code. These are the steps which are related for complete app production in Flask. Okay, so there is a database also. Okay, there is designing, there is front end, there is back end, and then there is deployment on Heroku. Okay, so we are going to use the database today also. Okay, and I would like to make it easier for you to understand how to use it on command line, how to test database. So that is what I want. Let's start. So शुरू करें. इसको मैं VS Code में करूँगा, इसमें बहुत कुछ समझाने को नहीं है. ठीक है, actually I should save that. Control S. Flask. ओके, इसमें ज़्यादा कुछ समझाने जैसा नहीं है. वी विल क्रिएट अ प्रोजेक्ट एंड फिर जो है हम कमांड लाइन से कुछ काम करेंगे. ओके, MKDIR. इसके बाद इसका नाम रखेंगे, वी आर गोइंग टू नेम इट Flask CRUD, because we are going to use database CRUD actions. So this is going to be better looking than the previous application, remember. Okay, so this is MKDIR, make directory Flask CRUD. So it's created a directory called this at 12.5. Okay, and then I will move to CD Flask CRUD. Okay, so now we are in this Flask CRUD folder. Okay,
Now what I have to install, I have to install the things that are like Flask SQL Alchemy हमें यूज़ करना है, हमें Flask इंस्टॉल करना है. This is library is by default not available, so we are going to use it. So I have to install this, install Flask, and then I have to install Flask SQL Alchemy. Previously हम लोग ने SQL Alchemy इंस्टॉल किया था. SQL Alchemy क्या होता है? SQL Alchemy is the default thing, okay? But if you are using Flask, you can use an easier version which helps us in writing simpler code. So it's like a easier version of SQL Alchemy specifically developed for Flask. Flask के लिए बनाया है. तो हम pip install Flask कर रहे हैं, SQL Alchemy कर रहे हैं, और इसके अलावा शायद मैं बाद में Bootstrap भी यूज़ करूँगा, लेकिन अभी छोड़ देते हैं, बाद में देखते हैं. So that is done. And now what I want to do is I want to create some folders like Control L से ये clear हो गया. So I want to create a folder called templates, mkdir templates. Okay, so this folder is like for storing your HTML files. Actually I should move on to VS Code. So मैं क्या करूँगा देखना ध्यान से. ये डॉक्यूमेंट्स है, हम इस फोल्डर में हैं. इस फोल्डर से मैं बाहर आऊँगा लाइक दिस cd डॉट. अब हम सही जगह पे हैं. अब हम लिखेंगे कोड. इसको क्या कहते हैं? ये तरीका है शॉर्टकट अगर आपको फोल्डर्स जो है यहाँ से ओपन करना होता है अपने कमांड प्रॉम्प्ट से. तो कोड स्पेस फ्लास्क क्रड लिखेंगे तो होगा क्या कि आवर VS कोड विल लॉन्च एंड इट विल ओपन दिस फोल्डर कॉल्ड फ्लास्क क्रड. बट उसके लिए मुझे पहले फ़ोल्डर से बाहर आना पड़ता है, नहीं तो वो उसे फ़ोल्डर मिलेगा ही नहीं. तो आप देखेंगे मेरा VS कोड दोबारा खुल गया एंड पुराने वाले को बंद कर देते हैं. एंड दिस इज़ लाइक Flask CRUD available, and I have created a folder called templates inside this Flask CRUD. Okay, ठीक है. So अब हमने ये तो बना लिया. अब हम क्या करेंगे? We will create a file called app. This is the file which runs the server, because you should know कि if you are creating a web application, there is a server and then there is client. Client is by default the browser that you are using, and server is this file which will run and allow the client to access all the pages. ठीक है. तो ऐप जो है एक सर्वर है हमारा. इसमें हम क्या करेंगे? हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि अगर मुझे फ्लास्क यूज़ करना है तो आई शुड इंस्टॉल सम प्लगइन्स. यहाँ हम जाएंगे. दिस इज़ माई एक्सटेंशन एरिया, एंड इन द एक्सटेंशन एरिया आई हैव टू इंस्टॉल हैप्पी फ्लास्कर. क्या मैंने कभी बताया हैप्पी फ्लास्कर क्या है? नहीं ना, नहीं बताया होगा. आई डोंट थिंक सो. नहीं सर, नहीं बताया. तो अब बताता हूँ हैप्पी फ्लास्कर क्या है. If you are using Flask for your project and you want to write that code, so what you can do is you can use Happy Flasker. This is a plugin. Just type Happy Flasker and it will show you. Okay, not Happy Hipster, we don't want that. This is a theme. This is Flask snippets. Snippets are like shortcuts. So we are going to install this, and with the help of this we can write small codes that will totally help us. Plus I will also install two more things because we are going to create HTML pages, and HTML में बहुत सारे लोग जानते होंगे. HTML बहुत सारे लोगों को आता भी होगा मेरे हिसाब से, सिवाय एक दो बच्चों को छोड़ के, लेकिन फिर भी HTML में आप जानते हैं कि there is a lot of code involved. तो what we do is हम लोग Bootstrap 4 plugin इंस्टॉल करते हैं. This is not the plugin, this is नीचे वाला plugin. This plugin Bootstrap 4, Font Awesome 4, Font Awesome 5 free by Ashok Koi, इन्होंने बनाया जो है, इसको हम इंस्टॉल करते हैं. This is very important if I am making a website. It should look good. So it makes generating long lengthy HTML code easier. So this extension Happy Flasker, and one last that is called jQuery snippets by Don Jayaman. Where is that? jQuery code snippets, this one by Don Jayaman. You can see. So तीनों के नाम नोट कर लिया आपने.
there are 3 plugins that are needed to be installed, not plugins, extensions that are needed to be installed. First is Happy Flasker, second Bootstrap 4, third jQuery code snippets. Okay, so these plugins I have already installed it because all the projects, if I am doing Flask, I am using those, so I've already installed them. So coming back to my first thing, app.py. So HW means hello world, and since we are using Happy Flasker, so it will show you this pop-up Flask hello world. It means कि you are writing it मतलब correctly, and if you are writing this, then if you click on that option, it will generate some boilerplate code for you. This is like basic code. Now I will explain all the sections, but first you should understand that this is the minimal code for creating a creating a Flask server. Okay, now we are done with that. After that, what we will do, we will make some changes. Okay, we will make some changes here, like we will add some specific classes and functions. Like this is from Flask import Flask. What it means is we are importing this class. This is a class from this particular module. Okay, this is a module micro framework based on Workzio, और ये हमारी क्लास का नाम है. Okay, then I will write render template. ये क्या होता है? This is a function which will help us to load the HTML pages. So from Flask import Flask render template, that is done. App equals to Flask name. What is this? This is a line that will create an object of this Flask. This will create an object. Yes, I am recording. So this will create an object of Flask class, and then what is this? This is called a root. A root is what? A root is like a web address that you create, and inside that particular root you add your logic, what will be displayed in that page. Let me show you how it runs. If you run this application, first I will make some changes here. Also we will add debugging because we are developing this application right now. See, we want to check all the errors and problems, so we add this line debug equals to true. If my project is complete, I will remove this line and there will be no pop-ups like error kya aaya or something like that. So we don't need that in actual production, we use it for testing. So now if I run this file, running is like this. Okay, if I run this file python space app.py, so it will give me this information, lengthy information. It will tell me debug mode is on, this is a development server, blah blah blah, and this will give me an address, a browser address. So if I click on that address, control click, it will show me something like this. Okay, it will show me something like this, hello world. What is this hello world? By default, this area, this line was executed by default. This line was executed. I am not executing anything, it will be doing it by default. And after that, what is happening is this function is executed. वही बता रहा हूँ, app.root का मतलब होता है create an address for the web server. Okay, और slash का मतलब क्या होता है? home address. We can create multiple address, like if you visit any website, like if I visit any website, for example, if I go to Google Meet, what will happen? You are seeing meet.google.com. so this is like normal address. Okay, but if I go to particular like new meeting and get a link, blah blah blah. So let me just show you. This thing, so you can see there is this address on the top. यहाँ पे address लिख के आ रहा है. ये जो address है slash के बाद आ रहा है, and this address is called the page address. By default this is called the domain या actual base URL. This is called the address या root. Okay, so likewise what we can do, we can create slash login slash contact slash about, whatever you want, but this is the default address. We are not making any changes to that right now. And so this is an address, and if this page is loaded, if the default page is loaded,
execute the hello function and return hello world. So it's showing me hello world here. Why? Because we are returning hello world of Pokemons. Okay, so if I write that and if I refresh that, it will update the data. So you can see कि this default page is being loaded. Is that okay with everyone? So this is the default, actually this is a default string, not a web page. We are going to create a web page now, and then we want कि if the home page is called, then display the web page. Okay, are you clear? Am I clear? Let me create a HTML page. Now in Flask, every HTML page is created inside this template folder, which I had created here. I created this folder templates. So what we can do is right click on templates, new file, and I will create the first file, which is by default conventionally and programmatically it's HTML, index.html. So this is my first file, and whatever HTML you know, I think you know a little bit of HTML. Okay, so whatever HTML you know, you can use that. Okay, हैप्पी बैटमैन डे, एक्चुअली आज हैप्पी बैटमैन डे है. सो तो जो है ये जो हमारा पेज है ये यहाँ पे रीलोड नहीं होगा, दिस विल नॉट बी लोडेड. ओके, एंड दिस इज़ अ फैक्ट, आज हैप्पी बैटमैन डे है. अब हमें करना क्या है, वी हैव टू डू व्हाट, वी हैव टू टेल दिस फंक्शन hello, which is a bad function by default. I will rename it like index. This is nice word for this index function will load this index page. So this is index function now, and I will do what, I have used this render template. Render template का काम ही यही होता है कि it will help us to generate this HTML file when this address is called. Okay, so I will write return render template, and after that what I will do, in single quote I will write the name of the file without giving any address. I will just write the name of the file in whatever case it is, bus. And now what happens is, whenever you are changing the code, actually what happens is it is doing some changes. You can see it is changing itself by default. When debug equals to true is on, it updates itself. If it is not on, it won't update. You will have to restart it. So now you have happy Batman day here, and this is coming from which page? This page. Okay, क्या था, we deserve, मैं भूल गया पूरी line. So something like this. So whatever you do in this page, this will be updated here. There is something called template inheritance. Okay, template inheritance होती क्या है कि this thing, what is that? It means कि if you have created one page of HTML, because you know there can be an HTML page you can create, and if you have decided कि the HTML page will have a header, then it will be having a footer, and there will be some content. Okay, so, some colors actually. So what you can do is you can decide stuff. हाँ भाई, तो मान लीजिए मुझे अपने वेबसाइट में ऊपर जो है एक मेन्यू चाहिए, और देन वी वांट कि देयर शुड बी अ फुटर. आई डोंट वांट कि कोई फुटर हो, लेकिन लेट्स अज्यूम देयर शुड बी अ फुटर. ओके, सो आई वांट माय ऑल पेजेस, एवरी पेज, लाइक माय होम पेज, माय लॉगिन पेज, every page to look like same in like header footer सेम हो. ऐसा नहीं कि सब सेम हो, लेकिन header footer तो सेम होना ही चाहिए. Okay, so what happens is if you want to make
हाँ, base.html की बात आ रही है. Very good. So there is something called template inheritance, where we want कि the same thing, the thing that are common to every HTML page, like हर पेज में लॉगिन स्क्रीन तो होगा नहीं. Every page will not be login screen. Every page will not be आपका dashboard. Okay. Every page will, you would want कि every page जो है थोड़ा बहुत different लगे एक दूसरे से, but still there might be similar design. So all three pages are different. Their header and footer are same. Can you see? So what we do is we do the concept of inheritance. And how this concept of inheritance work, let me show you. So what happens is we create a one file called base, the base file, yeah, the theme file. Okay. And that theme file is used for used as a super class to each HTML file. This is only done when you are using a framework. It's not like आप ये normal HTML में करते हो. This is the concept of framework. If you are using framework in any language, then you follow this concept of inheritance in templates. So there should be a file called base, and that file base.html will contain the basic code that will be copied in every file. Are you getting my point? Just assume these are those files. Okay, just assume. HTML. Look at the design. There is a pink header. This is like pink. It's not really pink, but it is, assume it is pink. So this is the pink header. Okay, it's like, it's in login, it's in HTML, it's login, it's in home, it's in about. All three files have this header, common header, and all three files have common footer. So what actually you want to do is you want to add this header to each file, but you don't want to write the code again and again. Normally what would happen, अगर आपको ये लॉजिक नहीं पता होगा, जैसे कहते हैं टेम्पलेट इनहेरिटेंस, व्हाट यू वुड डू कि यू विल राइट 10 लाइन्स ऑफ कोड फॉर हेडर, 15 lines of code for footer in first file, then second file, then third file. हर फाइल में आप 25 से 50 लाइनें लिख रहे हैं सिर्फ हेडर एंड फुटर के लिए. What is happening now with the help of Flask, what we can do, we can specify all the common things like common header code and common footer code in a special file which is called base.html, and then this base.html is used as a super class in this file, and this file. So every page will have same header and footer, and the content inside that page can be different. Is that okay with everyone? Like everyone is like sleeping. Just say if I can name them. So template inheritance is very important, and we are going to use this logic. Okay, I should make it like below. So let me use this thing and make this code update. So what I will be doing is I will create click on this, right click on this template folder. I will create a file called base.html. Now you would like to create some basic stuff like doc. You will write doc.
doc is not for doctor, it's a shortcut for EMET abbreviation. Okay, it's a shortcut for EMET abbreviation. वो क्या होता है? It's like this. This is a shortcut for default boilerplate for basic HTML, the most basic HTML that you can see. This is called doc. Okay, so I'm not going to add bootstrap right now. I'm just going to make some changes in the title and everything. So what I will do is I will just cut this. I will cut this, and I will now write some weird looking code which is called Jinja template. Okay, that code that I'm going to write is called Jinja template. Now see what I am writing. It's called Felif. It's a shortcut. Actually, F means flask and LF means flask if elif conditions. So I don't have to write elif actually. 5. I have to write 5. It means flask if else. This is flask if else. So if you want to check this out, what it will do is will generate a special code in HTML which is having this weird syntax, and this syntax is called Jinja templating. What it is called? Jinja template. It's like you are adding some dynamic blocks of code in the static HTML. HTML static होती है, आपको पता होना चाहिए. And जो हमारा फ्लास्क होता है उसमें ये चीज़ होती है Jinja 2 actually. उसकी help से what you can do is you can add dynamic areas in the HTML code. Okay, and this is called an if else and if. Why I am using this shortcut is very important. Okay, if I am writing it manually, you can see I have to do it, like I have to take care of all the spaces and I have to do everything. But with the help of shortcut, you will just have to edit the part inside it. So 5 is like 5 flask if else 5, and there is this expressions means here I will put my condition, then I will put my HTML code, then here I will put my another HTML code. Look at this. My condition will be if title. So it means if I have provided this variable called title, then display the title tag. If you know the title tag, this is the title tag. Then display the title tag with this message. Okay, so what will happen is if this variable contains anything, then display this dynamic title. Dynamic title means in the browser you will have, यहाँ पे अभी क्या लिख के आ रहा है, you can see there is this IP address coming. I want कि लिख के आए जिस भी पेज पे हैं हम वो, और उसके आगे लिख के आए फ्लास्क CRUD. इट्स लाइक ये जो है ये नॉर्मल स्ट्रिंग है और ये जो है वेरिएबल है. आगे बढ़े. डबल कर्ली ब्रेस मीन्स you are putting a variable, and curly brace percentage means you are doing some logical thing in HTML. So this might look weird for few people, might think ये हो क्या रहा है, लेकिन this is like adding dynamic data inside HTML. Normally अगर कोई title provided नहीं होगा तो title क्या होना चाहिए, welcome to Flask CRUD. Okay, so these are the two options for my dynamic titles. So it will make you understand, and it will help you to understand ki what is dynamic. Sometimes आपने ये भी देखा होगा जब Gmail ऊपर खुला होता है और मेल आता है तो ऊपर टैब पे Gmail ना लिख के आ रहा होता है, उसकी जगह लिख के आता है मेल रिसीव्ड. या WhatsApp पे होते हो तो WhatsApp का अगर टैब खुला होगा वेब WhatsApp तो आपको क्या दिखाई देगा, आपको ये दिखाई देगा ऑप्शन कि आपको 1 मैसेज मिला या 2 मैसेज मिला, यानी कि वो जो टैब होती है वो भी डायनेमिक कर सकते हैं हम. तो दिस लाइन इज़ डूइंग व्हाट, इट इज़ मेकिंग अवर टैब डायनेमिक, द टैब्स ऑन द पेजेस. Okay, now what I will be doing is I will be adding my block. This is F block, Flask block.
एंड ब्लॉक फू एंड ब्लॉक ये है क्या? दिस इज टेलिंग कि वी आर गोइंग टू क्रिएट अ कंटेनर, special type of container. Actually I will write content. We are going to create a content box where the code from index.html page will be displayed, and I will be writing some common things like, do you know, h1. So the thing is, you will be seeing this message h1 में जो लिखा है Flask CRUD app on every page that I create. Whatever page I create, you will see this thing written. So what will be happening now is I am done with this page. I am not going to design it right now because we can design it. We can create headers, footers and everything in here that will be common to every page, but I'm not doing that. What I'm going to do that is I'm going to update my index page, which is like Happy Batman Day नहीं होगा उसकी जगह. Okay, so यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा f extends. This is a shortcut to extend the file. आपने एंड ब्लॉक बंद नहीं किया है क्या? मजाक कर रहे हो क्या? सॉरी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच. परसेंटेज ब्लॉक कंटेंट एंड ब्लॉक, नाइस, थैंक यू. ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लिख रहे हैं कि अब हमें क्या करना है. अभी मैंने जैसे बताया था, इनहेरिट करना है login.html या जो भी पेज हम बना रहे हैं index.html उसमें बेस को. तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे f extends, which is like a shortcut for creating this syntax. Now extends means कि find a file जिसको extend करना है, और उसके बाद कोड्स में मैं क्या करूँगा, base.html लिख दूँगा, which is like उसका एड्रेस नहीं लिखना है, सिर्फ नाम लिखना है, और फ्लास्क समझ जाएगा कि base.html is inside templates. टेम्पलेट्स की स्पेलिंग एग्जैक्टली यही होती है, कुछ और नहीं हो सकती. नाउ व्हाट आई विल क्रिएट इज, आई विल क्रिएट एफ ब्लॉक कंटेंट, एंड देन इनसाइड this content is the same thing. Let me just give you an idea. This content area is like open and close in the base file, but in the other files it will be the area where every code is written. Okay, यहाँ पे ये बंद रहेगा, ये ओपन हुआ बंद हो गया क्योंकि यहाँ पे इसमें कंटेंट नहीं भरना है. ये बस ये बताने के लिए कि हेडिंग के नीचे दूसरे पेजेस का कंटेंट आएगा, और बाकी पेजेस में क्या होगा, आप बेस को एक्सटेंड करोगे, और जो आपने ये ब्लॉक कंटेंट बनाया है, कंटेंट इज़ लाइक कुछ भी लिख सकते हैं, कंटेंट की जगह बॉडी, कंटेनर, ABCD XYZ. तो आप अपने पेजेस में ये बनाओगे एरिया, और अब इस एरिया में सब कुछ लिखोगे, which helps us to load the content. Now what I will be writing is h3 I'm overwriting the block called content in base.html. So you will see. Okay, so this was end block, this is block, and now what I can do is I can check my browser. This is my browser. I can refresh it and you will see कि Flask CRUD app लिख के आ रहा है. Actually Flask CRUD app कहाँ से लिख के आ रहा है, क्योंकि we are extending this base.html, so it's loading whatever content we have. From this base.html file, and welcome to the app home, and I am overwriting the content base.html. ये यहाँ का area है. Okay, the only concept that you should also know is if you write something outside, like this is madness. Okay, if I write something like this, what will happen is if I refresh, you won't see anything. Why? Because anything that
is like a child of base.html can have all the content only inside this container. If you write anything outside, will not work. Okay, so you cannot write anything outside here. You can write anything here, like this can be done. So this will load, बट कोई भी चीज़ बाहर लिखोगे वो चलेगी नहीं. तो ये जो हुआ, ये क्या हुआ कि हमने app.py में कहा कि index.html लोड करो. index.html हमारा लोड हो रहा है, लेकिन वो जो टाइटल है और सेटिंग है वो कहाँ से ले रहा है, वो base.html से ले रहा है. और आप ऊपर देखो यहाँ लिख के आ रहा है, क्या एरर आ रही है, वेलकम टू द क्रड, सॉरी वेलकम टू फ्लास्क क्रड. ये क्यों हो रहा है मैं बता देता हूँ. ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा एल्स में ये पोर्शन लिखा था, तो यही चलेगा. अभी हमने टाइटल वेरिएबल सेट नहीं किया है, तो वेलकम टू फ्लास्क क्रड आएगा. ओके, व्हाट आर यू सेइंग शिवम, क्या एरर आ रही है? ऐसे बोल के बता सकते हैं. जुंजा टू टेम्पलेट फोल्डर की स्पेलिंग गलत होगी. टेम्पलेट्स की स्पेलिंग एग्जैक्टली यही होनी चाहिए. अगर कुछ भी उल्टा सीधा लिखा तो चलना बंद. ओके, check that in spelling. Coming back to XD, there is something called static files. Because हम लोग क्या करते हैं, हमें अपने वेबसाइट को अच्छा करना होता है, तो HTML के अलावा वो दो चीज़ें क्या होती हैं जो ज़्यादातर यूज़ की जाती हैं वेबसाइट को अच्छा करने में. कोई बता सकता है वेबसाइट का लुक एंड फील चेंज करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है HTML के अलावा? हाँ ठीक है, बूटस्ट्रैप, CSS, JS, ये सही जवाब है. बूटस्ट्रैप इज़ लाइक एडवांस जवाब क्योंकि वो फ्रेमवर्क है. CSS एंड जावास्क्रिप्ट इज़ करेक्ट आंसर अगर आप स्टार्टर पॉइंट पे हैं. तो ये जो फाइल्स होती हैं, जो जावास्क्रिप्ट और CSS की फाइल्स होती हैं, क्योंकि हम HTML लिख रहे हैं तो वी कैन ऑल्सो यूज़ दोज फाइल्स. बट द थिंग इज़ यू हैव टू स्टोर ऑल दोज फाइल्स इन अ न्यू फोल्डर कॉल्ड स्टैटिक. This folder will contain your CSS file, and I have to follow a structure. I have to so title variable को कैसे use करेंगे, we are going to come to that in a bit. First I have to create this static folder, and since there are different CSS files which can be applied to a project, and there can be multiple JavaScript files, so what we do is we segregate these files in different folders. Like if I have CSS files, I will put it in CSS folder. If I have JS files, I will put it in the JS folder. So CSS हम करने जा रहे हैं, JS हम करने नहीं जा रहे हैं अभी. So just for example, static will have subfolders like these: JS, CSS, fonts, images. Okay. Now coming to CSS, I will click and create a file called main.css or whatever you want. This is a CSS file. In that CSS file I will just write the basic. I think आपको body का color change करना होता है. I don't know CSS actually. I have तो हम use कर सकते हैं this thing, light sky blue, या I will use light steel blue, the ugly one. This is a very ugly color, you can see, but you can change it. So this is for me. And now since this is a different file, what I will be doing is I want this file to be available in every page that I am going to create after index. There can be multiple pages. So the thing is I will go to base.html because this is going to be the common file available to all HTML files. So I will, everything common is written in this page, in this file. So I will write this line here, link equals to, you can see I am using all the shortcuts available to me. I am writing link. I am not writing angular bracket link because that is not the way of coder. I will write link enter. Okay, link enter means create a link tag with all the requirements and then ask ki what is the URL. So I will be writing something weird now. FURL for, I think the FURL for नहीं होता, URL for के लिए कोई shortcut? No. Double curly braces open, double curly braces close, and inside this I will call a Flask function which is called URL for. URL for means generate a URL for this file called static.
okay, this folder actually. So it means generate a static folder, sorry, generate a URL for a static folder, and then my file name is css slash main.css. so I am saying key use this function that is available from Flask. I'm not teaching you Flask all the way from the basics, but this is like crash course, so sometimes you will have to read Flask. Okay, you can read Flask, read documentation, so you will understand. But this line means generate a URL for this folder and this file, and it will generate a URL for this particular address internally. You are not writing the address of this file, okay, because that is a bad idea. This is the correct way. I have a shorter way also, but I won't be showing you. So this means key if I go in the HTML page and refresh it, you will see the colors applied. Okay, अगर मैंने typo किया होता like this, so you won't see any error because this is HTML. You won't see any error, but the HTML will not, the CSS design will not load. So now our weird bad color is loading, which is good. And if you want to change it, like if you want to change it to something like light yellow, you can do that. Like this is like Bimari. So you can say कि update क्यों नहीं हुआ. Sometimes it doesn't update for the very first time. Sometimes if it is not updating, you can press Control F5. Control F5 is like hard reload. Hard reload से it reloads every file that is available in the memory. So now you can see the update. Okay. So sometimes whenever you change your code in this file and you refresh it, you don't see the updates. So for updating it, you can press Control F5. आगे बताएं? So now we are going to create a database. Okay, so in the last episode I created a database from SQL Alchemy, and you saw that I did a lot of code in a different file, but in this example I'm going to write the code in the same file called app.py. So there is this code from flask underscore SQL Alchemy import SQL Alchemy as no बस इतना ही बहुत है, and from date time, because I have to store the date time. In the previous example I did not. From date time import date time. This is a Python module. Okay, then what I will be doing is after this line I will set up my database. app.config, this is like a predefined config means settings, yeah, configuration, and I will tell what is the name of database. So it will be like this, SQL Alchemy. It's like predefined. You don't have to like think what are the different options. SQL Alchemy database URI. Database URI means database address, yeah, database name address. So this is like a setting that we are telling to Flask use this setting to create to create the database. So I'm typing SQLite : triple slashes, and then I'm going to name it called fcrud.db. okay, fcrud.db is like SQLite file, but you can write db. So यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये जो है ये सेटिंग है, ये हमारी फाइल का नाम है, और हमारी इस एग्जाम्पल में जो डेटाबेस बनेगा उसका नाम fcrud.db होगा, और हम SQLite का डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं. Then I will activate my database variable which is not available yet, and now I will tell key SQL Alchemy, this class should load the app, which is like this variable, and in the app
ये अपने आप जो है समझ जाएगी क्या क्या सेटिंग यूज़ करनी है, और ये db वेरिएबल क्रिएट कर दिया। ये db वेरिएबल से अब हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे। सो नाउ दिस इज़ ऑल बॉयलर प्लेटिंग, ठीक है, but this boilerplate is different because we are using Flask SQL Alchemy. Now we are going to create that class called the model class, and for example I'm going to create a grocery example. This is grocery, and then db dot model. Model means a class that will generate the table in the database. Okay, model means model is like the ORM class जो हमने last time बताई थी, and you will see I will be creating only one column and the code will be similar. Column, and this will be db dot integer primary key. मेरा हाथ नहीं सेट हो रहा. Primary key equals to true. Then I will create a column called name, and inside that I will write db dot column, and then I will do key, this will be a string, and I will also set one property that I have not told you. It will be nullable equals to false. It is defining key you cannot skip it. It is required. Nullable equals to false means nullable equals to false means you cannot skip this item because it is required. You have to fill this value in the database. Okay. In the previous example मैंने किसी भी चीज़ को nullable equals to false या कोई भी एक्स्ट्रा सेटिंग्स नहीं दी थी. इसका मतलब ये था कि हम उनको स्किप भी कर सकते थे. अगर एक आध वैल्यू मिस करें तो भी चल जाता. ठीक है, डेटाबेस एंट्री करते वक्त तो हम वहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम कह रहे हैं कि nullable जो है वो false हो, which is like a you can say कि एक constraint लगा दिया कि आपको देना ही देना है. क्रिएटेड एट वो कॉलम है जो टाइम होल्ड करेगा. तो पिछली बार हमने टाइम नहीं लोड किया था, इस बार हम लोड कर ले रहे हैं db डॉट डेट टाइम, और कह रहे हैं nullable ऑन डिलीट यूज़ होता है. हाँ होता है अगर आप फॉरेन की यूज़ कर रहे हैं. डिफ़ॉल्ट इक्वल्स टू डेट टाइम डॉट utc now this whole line will do what? It will create a column called created at, then it will create a column of type date time, and this property default is saying ki you don't need to fill this thing. It will be automatically filled by the current time. Date time dot utc now gives you the current time. Okay, so it will generate data in this column automatically, and since id is primary key it will be automatically also set up. So you have only one column जिसको basically तुम्हें भरना है, बाकी दोनों column automatic हैं. If you want you can add more columns and you can do work with that, but अभी हम इसी example पे यहीं रहेंगे. Now coming back to this thing कि I want something called representation, how this object will be represented, how an object of grocery will be represented when displayed. So this is a magic function, or you can say a predefined function called repr. ये पाइथन में होता है. आपने अगर पाइथन पढ़ी होगी तो पाइथन की क्लासेस में ये फंक्शन प्रीडिफाइंड होता है. नहीं पढ़ी होगी तो भी ये होता है, मना कौन कर सकता है. तो दिस फंक्शन इज कॉल्ड representer function या representative. It will represent any object of this grocery class, and here we can define how the object will be represented, how the object will be displayed. So I'll be writing this cryptic code, angular bracket f grocery, and this will help me in understanding कि होगा क्या. Serve dot name. So this is like
should I am removing the angular brackets. Grocery सब रखें, हाँ ठीक है. So this function helps us to load. Now I will be showing you कि how this happens with the help of command line. Okay, I will also add one line that is like there is a warning message when we run this code, so I will also do that. It's not necessary if you want to see the warning, but if you don't want to see the warning, you can write this SQL track modifications. Okay, if you don't write this line, there will be a warning in the terminal, not everywhere. And you can see, since I've been writing in this app.py, my server died. Server died means my server has returned to normal. The command prompt is like available to type, so my server is dead. So whenever you change code in this file, app main server file, and you don't do it fast enough, the server dies. So you have to restart your server, like with the command python app.py. Now what I will be doing is I will be testing this database if it is working or not. And since this database is not actually created, I will create it with the command line procedure in this area. Control L, cd क्या नाम है हमारे फोल्डर का, flask cred ls. We can see we have these files, static, template and app. Okay, so control L. After that I want to do what? I want to activate my Python. So now Python 3.8 is activated. Now what will I do is I will from app import db. So it will do what? It will actually load this variable db here. So जो मैं स्टेप यहाँ कर रहा हूँ एक्चुअली आप यहाँ पे भी कर सकते हो. आप क्या कर सकते हो, जो हमने पाइथन कमांड यहाँ लिखी है आप यहाँ पे भी कर सकते हो. मैं बस थोड़ा ज़्यादा बड़े फॉन्ट में करना चाहता हूँ, यहाँ कर रहा हूँ. तो फ्रॉम ऐप इंपोर्ट db से हुआ क्या कि आई एम जस्ट यूजिंग द पाइथन स्क्रिप्ट and then I'm just accessing this file called app and accessing the db variable, and then doing what? I'm going to add one object of grocery. Okay, so how will I do that? First I will create the database db.create all. लास्ट टाइम हमने engine.create all किया था, यहाँ पे हम db.create all कर रहे हैं. ये किया मैंने, and now you can see there is this database available fcred.db जो पहले नहीं था. fcred.db तब आता है जब आप ये चलाते हो. अब ये बार बार नहीं चलाना है मुझे, ये मैंने एक बार चला दी और जब मैं अपना प्रोजेक्ट चलाऊंगा तो ये कमांड नहीं चलेगी. ये सिर्फ अभी मैंने चलाई है बिकॉज आई एम यूजिंग शेल, दिस शेल to activate my database or to create my database. Now what I am going to do is from app import grocery, and grocery is my class, so I am going to create object o obj equals to grocery, a new grocery, and I will add name equals to किसी फल का नाम बताना, एप्पल. super slow. So this object is there. Now I will use db.session.add. Last time I did session.add but वो SQL alchemy था. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ हम db से access कर रहे हैं db.session.add. So I will say db.session.add this and db.session commit and done. So what happened is actually I have added a value in the database called grocery और उस grocery के अंदर नाम है apple. I can actually search my grocery table like this. This is easier query. In the previous example, in the previous SQL alchemy example, I used session.query और उसके अंदर मैंने बताया grocery से data निकालो. यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे we can directly access it by this grocery.query.all. So you will see grocery apple हमें निकल के आया. Why it is showing grocery apple? Because I have
written the code like this. If I change my code to something else, if I write grocery colon apple, you will see the colon available. So the representation function, this representation functions help us to make the output look better, वरना बहुत ही weird सा output आता. Okay, I will add 2 more items. Apple के अलावा there is also broccoli. I don't know broccoli की spelling क्या होती है. Anyone can tell me broccoli की spelling क्या होती है? Broccoli. I don't know. Let's start with cabbage. And I would add this thing, object, and I'm just writing it with old commands. So now 2 items are added. You can see 2 items, grocery apple, grocery cabbage. Okay, so now they are added. I would like to add timestamp also, but no, this is okay. One more item, milk. So now you can see कि you can actually use this prompt to access your database and add stuff and see stuff. So now we have 3 items. Okay, so I will exit, and now my database is created. I have put in 3 items, so I want them to display on the page. Okay, और ये करना बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है. Let me show you. So the database is there. You can check your database like this, open database, and you can check it, but I'm not doing this because I know. I just want to make this look a better, ugly, normal version. मैंने quantity ऐड कर सकता था, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ छोड़ो कौन करे. So I would like to make this normal, and now only apple, cabbage and milk will be displayed. Grocery word will be removed because that was looking gross. So coming to the next item, what I will want कि whenever I open my page, this index page, I want to see कि what are the different groceries available, but I also want to add new groceries using a form. So what I am going to do is like the most complicated part. Look, a page that you have created can have a form. Okay, you can create a form here. This is not a Streamlit, so you have to define कि if the page has form, then you have to do extra settings. So this is the home page, the index page, and I am going to tell the system that our home page has 2 ways of working. It can either open like normal open हो सकता है, या फिर आप फॉर्म सबमिट करो तो रीलोड करके एक्सेसिबल हो सकता है, यानी कि फॉर्म भी आप भर सकते हो. तो ये जो मेथड्स हमने लिखा है, मेथड्स गेट एंड पोस्ट, इसका मतलब होता है कि आवर पेज कैन ओपन नॉर्मली मतलब होता है गेट, एंड पोस्ट मतलब होता है फॉर्म सबमिट किया जा सकता है हमारे पेज से. अगर आप ये प्रॉपर्टी लिखेंगे ही नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका मतलब होगा कि आपका पेज ओपन हो सकता है लेकिन वहाँ से फॉर्म नहीं सबमिट कर सकते हैं. तो दिस इज़ लाइक बाय डिफ़ॉल्ट एक सिक्योरिटी है जिसको जब तक आप बताओगे नहीं तब तक आप फॉर्म भर नहीं सकते हो. तो अब जो है हमने मेथड इक्वल्स टू पोस्ट बताया है, तब हम अपने पेज पे, इंडेक्स पेज पे फॉर्म बना सकते हैं, वरना वी कुड नॉट क्रिएट एनी फॉर्म ऑन द पेज. ओके, या फिर डिज़ाइन तो आप कर लेते लेकिन आपका फॉर्म चलता नहीं. नाउ सिंस आई हैव रिटन गेट एंड पोस्ट, बोथ आर द वेज अवेलेबल, आई कैन क्रिएट अ फॉर्म एंड आई कैन यूज़ दैट. तो फॉर्म हैंडलिंग का लॉजिक होगा एक हमारे पेज में. फॉर्म हैंडलिंग का लॉजिक लगाने से पहले आई वुड लाइक टू ऐड 2 लाइन्स ऑफ कोड हेयर. एक होता है फॉर्म को लोड करने का फंक्शन रिक्वेस्ट, और दूसरा होता है पेज को रीलोड मतलब घुमा करके कहीं भी ले जाने का फंक्शन रीडायरेक्ट. रिक्वेस्ट इज़ फॉर handling forms, redirect is for redirecting the page from one place to another. So coming here, form handling logic,
आई विल राइट समथिंग लाइक दिस, इफ़ रिक्वेस्ट डॉट, अगर रिक्वेस्ट जो है वो उसका मेथड, रिक्वेस्ट का मेथड, स्पेलिंग देख लो भैया, यहाँ मेथड में एस नहीं है, यहाँ पे एस है, दैट इज़ द मिस्टेक मोस्ट ऑफ द बिगनर्स डू। तो इफ़ फॉर्म डॉट मेथड इक्वल्स टू पोस्ट, इस लाइन का सीधा सा मतलब है इफ़ यू आर सबमिटिंग द फॉर्म, इफ़ यू आर सबमिटिंग द फॉर्म व्हाट विल वी डू, इफ़ यू आर नॉट सबमिटिंग द फॉर्म वो आगे, वो एल्स पार्ट में, ओके। सो इफ़ यू आर सबमिटिंग द फॉर्म आई वुड लाइक टू टेक दिस ग्रॉसरी नेम जो कि आपने फॉर्म में भरा है, जो अभी हमने फॉर्म बनाया नहीं है लेकिन मुझे पता है कि हम फॉर्म में भरेंगे। रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म डॉट गेट डिक्शनरी, कितने लोगों को पता है क्या होती है डिक्शनरी का आइडिया? एवरीवन नोज व्हाट इज अ डिक्शनरी? यस सर। वेल डन, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। सो ये जो रिक्वेस्ट के अंदर ये जो फॉर्म वेरिएबल है इट्स एक्चुअली अ डिक्शनरी, ओके। एंड डिक्शनरी में एक फंक्शन होता है गेट, और डिक्शनरी में जितना भी डेटा होता है वो कीज़ कहलाती हैं, मेनली कीज़ के थ्रू ही आप एक्सेस कर सकते हैं। तो नेम इज़ अ की विच विल बी गिवन इन फॉर्म एंड वी आर सेइंग from the request that has been submitted access this form variable and get me the name key, okay। and name key के बाद हम जो है हम क्या करेंगे, न्यू नहीं लिखेंगे, आइटम इक्वल्स टू ग्रॉसरी, अपना जो हमने मॉडल बनाया है जो ORM मॉडल है हमारा, उसमें बताएंगे नेम इक्वल्स टू नेम, इससे जो है हमारा आइटम तैयार हो जाएगा। अब हम इसे डेटाबेस में ऐड करने की कोशिश करेंगे, ट्राई db.session, जो अभी हमने सेम एग्जैक्ट चीज़ यहाँ की थी, पहले ऑब्जेक्ट बना रहे थे बार बार ग्रॉसरी का, फिर सेशन में ऐड कर रहे थे, फिर कमिट कर रहे थे, सेम यही करेंगे यहाँ पे। आइटम db.session.commit, so you can see this is a little less than the previous one। जो हमने नॉर्मल SQL अल्केमी में किया था उसमें ज़्यादा बॉयलर प्लेट था, इसमें कम है। इसमें जो हमने डेटाबेस के लिए कहानी लिखी है वो सिर्फ इतनी है, सॉरी इतनी है, इतनी कह सकते हैं आप। और पिछली बार जो है ज़्यादा लग रही थी, एंड पिछली बार हमने एक्चुअली 2 क्लासेस बनाई थी। अगर आपको यहाँ पे 2 क्लासेस बनानी है तो एंटर करके यहाँ पे आप दूसरी क्लास लिख सकते हैं, तीसरी क्लास लिख सकते हैं, जितनी लिखनी है लिखिए। REPR फंक्शन सब में बनाना ज़रूरी नहीं है लेकिन बनाना चाहिए, ओके। कमिंग बैक टू दिस, ये दिस लाइन विल क्रिएट द डेटाबेस, सॉरी add my entry to the database, and if it is not done what I will return a message ki there, this is not the best way of returning a message but it's okay, there was a problem, adding the new grocery item, so this is not the best way। what it will do, it will create a new page, एकदम white page आएगा, उस पर ये message लिखा होगा, which is not the best way of it doing it, लेकिन अभी के लिए इतना बहुत है। एंड अगर सब कुछ सही रहा तो you will be saying कि आपका database में data add हो गया। तो if the form is submitted, extract the value given in the form and then add that name to grocery object, then add that to the database and then save the database। if there is an there is any error, return this output, and if there is no error then do what, then okay, I missed one step, then if there is no error then return redirect to the home page, मतलब reload the page। ऐसा होता है कि आप चाहोगे कि आपका पेज रीलोड हो जाए, और आप चाहें तो मैसेज दे सकते हैं बट वी आर नॉट शोइंग दैट। if the page is normally loaded, what happens? If the page is normally loaded, what will happen is if the form is not submitted, या if the page is normally opened, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, नॉर्मली ओपन करने का मतलब है जैसे आप एक पेज से दूसरे पेज पे जाते हैं, वो होता है नॉर्मली। तो एल्स
page is normally opened. Okay, and now I will do what? Page normally 2 मिनट. पेज नॉर्मली ओपन करने का मतलब होगा कि हम जो हैं सारी की सारी ग्रॉसरीज़ को लोड कर लेंगे जो हमारे पास हैं. ग्रॉसरी डॉट क्वेरी डॉट yes. So what will happen is I will load all the groceries, but what I want is I want to sort them. So I can do order by जिस डेट से वो ऐड हुई हैं, जिस डेट से वो क्रिएट हुई हैं, उसके अकॉर्डिंग हम सॉर्ट कर देंगे. तो ग्रॉसरी डॉट क्रिएटेड एट, इट मीन्स कि सॉर्ट ऑल द ग्रॉसरीज एंड लोड देम ऑल. ओके, ग्रॉसरी क्वेरी करो उस डेटाबेस में एंड इस टेबल में, और सीक्वेंस जो है लोड करना है क्रिएटेड ऐट के कॉलम के अकॉर्डिंग, जो पहले ऐड हुआ है उससे पहले, जो बाद में ऐड हुआ है उससे बाद में, और ऑल, सारा का सारा डेटा. सो दिस विल लोड ऑल माई डेटा एंड आई विल रिटर्न द पेज, return render template. I am going to remove this line actually. This is like old. Now I will return render template and I will say index equals to index.html पेज लोड करो, लेकिन इस बार ग्रॉसरीज की इंफॉर्मेशन उस पेज में भेजो. ग्रॉसरीज की इंफॉर्मेशन ग्रॉसरीज नाम से भेजो. So this is let me tell you, this word, this second word is this variable, and this word, this thing, the first variable, the left side item is a variable which is created for this index page. index page में ये जो चीज़ लिखी है वो जाएगी, और इसका नाम कुछ भी हो सकता है, डेटा, आइटम्स, ग्रॉसरीज, प्रॉपर्टीज, कुछ भी, स्टेशनरीज. सो व्हाट विल हैपन इज़ इन द रेंडर HTML की मदद से हम पेज तो लोड कर रहे हैं index.html, but now I am sending this data also. Now what will happen is I will update my page index.html. I will take a 2 minutes क्या कहते हैं 2 minute pause and let you see कि मैंने क्या लिखा है, और उसके बाद मैं index.html को अपडेट करूँगा. If you have any question in any line, ask me. तो बच्चे तो ऐसे चले जाते हैं. इंडेक्स के लिए जो वेरिएबल लिया वो ऐप के वेरिएबल नेम के इक्वल होगा. ऑन व्हाट लाइन? आई डोंट अंडरस्टैंड. विच लाइन? रिटर्न रेंडर में इंडेक्स के लिए जो वेरिएबल लिया वो ऐप के वेरिएबल के इक्वल होगा. नहीं, इसका मतलब है कि get the data from this variable and put it inside this and send it here. ये ज़रूरी नहीं है सेम हो. REPR function is a representation function. It represents any object. Let me show you how it represents. Actually, I'm going to comment this out. Okay? Yeah, I'm going to comment this. Afterward, I show you the basic output. REPR से क्या होता है? REPR से हम ये करते हैं कि जो जैसे हमें मार्केट जाना है तो हम अच्छे से तैयार होके जाते हैं, वैसे ही हम क्या कर रहे हैं, हम मेमोरी से ऑब्जेक्ट निकाल रहे हैं, तो एज इट इज़ नहीं दिखा रहे हैं, हम कह रहे हैं उसे अच्छे से साफ़ सुथरा चीज़ दिखाओ. ठीक है? या हम कह रहे हैं कि सारी चीज़ें मत दिखाओ, सिर्फ नेम दिखाओ. एब्स्ट्रैक्शन तुमने पढ़ा होगा कभी, एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट. तो उसमें क्या होता है, उसमें मेन चीज़ें दिखानी होती हैं और जो बैकएंड में लॉजिक है वो नहीं दिखाना होता है. तो हमने क्या किया, हमने कहा जो दिखाने की चीज़ है वो सिर्फ नेम है, बाकी कुछ नहीं. तो REPR will allow us to represent the object with name only, not the memory variable, not the ID, not the created at, सिर्फ और सिर्फ जो हम बताएंगे वो. ठीक है? अभी REPR से बेनिफिट क्या होता है मैं दिखाता हूँ.
आउटपुट के तौर पे, तो ज़्यादा समझ में आएगा। बाकी दीपक इज़ आस्किंग ग्रॉक की जगह ग्रॉक इक्वल्स टू कैपिटल जी, नहीं, इसको आप जो लेफ्ट साइड पे दिया है इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, ABC XYZ, दिस इज़ अ न्यू वेरिएबल। और ये जो दिया हुआ है सेकेंड वाला आइटम, ये वाला वेरिएबल है, तो उसको नहीं चेंज कर सकते, लेफ्ट साइड की चीज़ को चेंज कर सकते हैं। ओके सो लेट मी जस्ट अपडेट माई फॉर्म हैंडलिंग। व्हाट फॉर्म हैंडलिंग? फॉर्म हैंडलिंग लॉजिक यहाँ से शुरू होता है यहाँ तक, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। दिस लाइन इट एक्सपेक्ट्स कि if you have gone on this page and submitted the form, if you have submitted the form, submit होकर के भी यही फंक्शन चलता है, और ये फंक्शन चलने पे चेक किया जाएगा कि आपने फॉर्म भरा कि नहीं। अगर आपने फॉर्म भरा तो request डॉट मेथड बिकम्स पोस्ट। अभी देखते हैं। एंड नेम इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म डॉट गेट का मतलब है कि देयर विल बी अ फॉर्म, HTML फॉर्म ऑन द इंडेक्स पेज, जिसमें एक बॉक्स होगा जिसका नाम होगा नेम। वही निकाल करके नए ग्रॉसरी ऑब्जेक्ट में रखो और फिर डेटाबेस में से सेव कर दो। अगर गड़बड़ किया है कुछ तो एरर दे दो, अगर नहीं किया है तो पेज को रीलोड कर दो। रीलोड करने पे क्या होगा, नेक्स्ट टाइम ये कंडीशन फॉल्स होगी, मतलब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ऑब्वियसली एल्स पार्ट चलेगा, और नेक्स्ट जैसे ही रीलोड होगा एल्स पार्ट चलेगा और सारी ग्रॉसरीज जो डेटाबेस में है वो निकल के बाहर आ जाएंगी और HTML पेज पे वो सारी ग्रॉसरीज दिखने लगेंगी। लेट मी शो यू। वी विल डू व्हाट, वी विल रिमूव दिस वेलकम टू ब्ला ब्ला ब्ला। आई विल डू व्हाट, आई विल डू समथिंग लाइक दिस। हम सबसे पहले एक कंडीशन लगाएंगे, 5 लगाना चाहिए। 5 में हम लिखेंगे अगर ग्रॉसरीज जो हमने वेरिएबल भेजा है यहाँ पे उसकी LNGTH का मतलब होता है लेंथ, ये दिस इज़ प्री डिफाइंड, डोंट थिंक कि ये मैंने स्पेशली बनाया है। तो ग्रॉसरीज़ की अगर लेंथ जो है इज़ ग्रेटर दैन इज़ लेस देन 1, मतलब ग्रॉसरीज़ है ही नहीं, तो क्या होगा, तो हम मैसेज देंगे यूज़र को कि ओके देयर इज़ नथिंग, देयर इज़ नो ग्रॉसरी। मैं पैराग्राफ बना रहा था, बना नहीं। सो देयर इज़ नथिंग टू बाय नाउ। ओके, अगर ग्रॉसरीज़ की लेंथ लेस देन 1 हुई तो देयर इज़ नथिंग टू बाय नाउ, और अगर है डेटा तो आई विल बी डिस्प्लेइंग अ टेबल। टेबल आपने कभी देखी है? HTML में देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड टेबल विच इज़ अलाउड फॉर अस टू क्रिएट। तो हम लिख सकते हैं टेबल, और टेबल के अंदर हम रख सकते हैं टी हेड मतलब हेडिंग्स, और उसके अंदर मैं रख सकता हूँ TH मल्टीप्लाइड बाय 3। ओके, सो दिस इज़ लाइक अ शॉर्टकट थिंग। यहाँ पे क्या होगा, टेबल के अंदर TH जो है, एक्चुअली आई एम मिसिंग वन थिंग, देयर इज़ ऑल्सो अ TR। now this is okay, so I am creating a shortcut. This is like, if you don't know, this is a emmet abbreviation. Emmet abbreviation is like a shorthand for HTML. टेबल टैग के अंदर टेबल हेड टैग, उसके अंदर टेबल रो टैग, और उसके अंदर 3 टेबल डेटा सेल्स। ओके, सो आई विल राइट समथिंग लाइक ग्रॉसरी का नाम, जो भी ग्रॉसरी है, देन किस टाइम ऐड की गई, किस डेट एंड टाइम पे ऐड की गई, और तीसरे वाले में हम लिखेंगे कुछ नहीं, अभी के लिए कुछ नहीं लिखते हैं। सो दिस विल क्रिएट समथिंग लाइक दिस। आई शुड रीरन माई Ctrl+J टर्मिनल। यहाँ पे आप देखोगे अब ये चलेगा, कोई एरर नहीं आनी चाहिए, अगर कोई भी एरर आएगी तो बेकार है। तो अब हम रिफ़्रेश करते हैं तो आपको दिख रहा है ग्रॉसरी एडेड। वाई? बिकॉज मैंने ये टेबल लगाई है। बस प्रॉब्लम ये है कि टेबल लगाने के बाद आजकल जो है दिखता कुछ नहीं है, तो मुझे बॉर्डर इक्वल्स टू 1 लिखना पड़ेगा। एंड नाउ यू विल सी देयर इज़ अ टेबल हेयर, अगली लुकिंग टेबल, NBSP %, NBSP किसी को पता है क्या होता है? ग्रेट।
तो एम्परसेंड NBSP छोड़ देते हैं, हटाओ, कौन बताए। आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज़ अ हेडर एंड नाउ व्हाट आई वांट कि डेटाबेस में एक्चुअली सारी ग्रॉसरीज पड़ी हैं। लेट मी जस्ट शो यू। ग्रॉसरीज अगर मैं लिखता हूँ GROCE ग्रॉसरीज एंड डबल कर्ली ब्रेसेस मतलब होता है वेरिएबल को डिस्प्ले कराना। तो यू विल सी एप्पल कैबेज बनाना मिल्क। वाई इट इज़ शोइंग एप्पल कैबेज मिल्क, क्योंकि मैंने REPR में ये किया हुआ है कि रिप्रेजेंटेशन फंक्शन लगाया है। लेट मी जस्ट रिमूव दैट। वो बेकार है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है बताने की। जब मैं उसको रिमूव कर दूंगा तो एक्चुअली मेरा सर्वर रीलोड होगा। अब मैं रिफ़्रेश करता हूँ, यू कैन सी ग्रॉसरी 1, ग्रॉसरी 2 एंड ग्रॉसरी 3। तो डू यू लाइक दिस वे ऑफ डिस्प्लेइंग डेटा और डू यू वांट अ बेटर वे ऑफ डिस्प्लेइंग डेटा? दिव्यांशु, ये तुम्हारे लिए। तो REPR से हो क्या रहा है, REPR इज़ हेल्पिंग अस to display this in a better format. Now it's showing the first item by its name only, not like grocery 1 model का नाम बता के मैं करूँगा क्या भी, cabbage and milk. So it's like the better way. But मुझे ये नहीं करना है, मुझे टेबल के अंदर डेटा ऐड करना है। तो I will remove this from here and I will add a loop. एंड लूप के लिए मैं शॉर्टकट यूज़ करूँगा F for फ्लास्क का for loop, फ्लास्क for loop, enter for element for item in groceries, क्योंकि हमारे डेटाबेस में 3 आइटम्स हैं या जितने होंगे आई डोंट केयर। फॉर एवरी आइटम इन अ ग्रॉसरी उनको डिस्प्ले नहीं कराना है मुझे। लेट मी जस्ट रिमूव दिस। उसको मुझे डिस्प्ले ना करा के इसके अंदर एक टेबल टैग लगाएं, टेबल रो टैग लगाएंगे और 3 जो हैं TD टैग लगाएंगे, टेबल डेटा टैग। फिर पहला जो लिंक होगा, should I do link? I should not. I should. I don't know. AHREF और इसके बाद डबल कर्ली ब्रेसेस। AHREF क्यों लिखा है बाद में बताएंगे। ग्रॉसरी डॉट, ना ग्रॉसरी नहीं लिखा है मैंने ऊपर, आइटम डॉट, जो आइटम वेरिएबल है एक्चुअली ये बहुत सारी ग्रॉसरीज हैं। पहला आइटम एप्पल है, तो आइटम में से हम एक्चुअली अब उनके सब कीवर्ड्स एक्सेस कर सकते हैं, जो कि पहले नहीं कर पा रहे थे, आप कर सकते हैं। तो आइटम नेम जो है ये हमारा पहला कीवर्ड है। दूसरा यहाँ पे रहेगा आइटम डॉट, ये डेटाबेस के अंदर जो बनाया था एग्जैक्टली वही वर्ड लिख रहे हैं, कुछ और नहीं लिख सकते हैं। यू कैन नॉट राइट एनीथिंग। आइटम डॉट नहीं, यहाँ पे एक्चुअली मैं डिलीट का ऑप्शन ऐड करने जा रहा हूँ। सो देयर विल बी ए and delete. So what will happen is if I refresh this you will see grocery, apple, cabbage, milk. ये इस लाइन की वजह से हो रहा है और अंडरलाइन इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने उसको A टैग के अंदर रखा है। हाँ, क्लिक करने से कुछ खास होगा नहीं, अभी मैंने क्योंकि सेट नहीं किया है। और देयर इज़ अ डिलीट ऑप्शन जिस पे क्लिक करने से कुछ नहीं होगा क्योंकि मैंने उनके डबल कोट्स में कुछ बताया ही नहीं है। ओके, लेकिन नाउ यू कैन सी डेटा आ रहा है, डेट आ रही है। डेट थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में आ रही है, लेकिन ठीक है, हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं डॉट डेट लगा करके। लेट मी मेक इट लाइक दिस, दिस इज़ बेटर, सिर्फ डेट बताओ। सो वी हैव दिस। नाउ what you can do is you can make it look beautiful. Now this is looking very ugly because this should look ugly. नीचे मुझे एक फॉर्म भी बनाना है जिससे मैं नया आइटम ऐड कर सकूं, तभी तो हम लोग जो हैं देख पाएंगे कि कैसे ऐड होते हैं नए आइटम्स। तो हम एक फॉर्म बनाएंगे, कहेंगे कि इसमें मेथड होगा, मेरा में डेटा शो नहीं हो रहा, वेरिएबल क्या है, वेरिएबल की नाम गलत रखोगे तो डेटा वेटा शो नहीं होगा। पोस्ट, ये फॉर्म है, इसका मेथड है पोस्ट। मेथड पोस्ट का मतलब होगा कि ये फॉर्म सबमिट होगा तो app.py में ये कंडीशन चलेगी जब फॉर्म सबमिट करोगे। लेबल फॉर न्यू ग्रोसरी आइटम,
इनपुट टैग लगाया, अगर आपको आता है तो इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम इक्वल्स टू नेम इक्वल्स टू नेम, ये प्रॉपर्टी बहुत ज़रूरी है। और ये जो ब्लू कलर में नेम लिखा है वही यहाँ पे हम एक्सेस कर रहे हैं एज अ फॉर्म डॉट गेट। अगर यहाँ पे आइटम लिखा होता तो हम यहाँ पे आइटम लिखते, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं नेम लिख रहा हूँ, नेम इक्वल्स टू नेम। अच्छा, ये जो है ये फिक्स्ड है, यहाँ पे चीज़ें चेंज होती रहती हैं। मतलब अगर हम दूसरे इनपुट्स बनाएं तो id इक्वल्स टू न्यू टाइम, ये और ये सेम चीज़ होती है। अब इतना मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये बेसिक आपका फॉर्म तैयार हो गया। लेट मी जस्ट शो यू, दिस इज़ न्यू ग्रॉसरी आइटम। यहाँ पे अगर हम जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कॉर्नफ्लेक्स लिख दें, कॉर्नफ्लेक्स लिख दें और ऐड बटन दबाएंगे तो इट विल रीलोड फटाफट and it will just add cornflakes. And if I add sugar, then it will add sugar. So now you can see I can add item to my database. It's not like कि यहाँ से उठ के डेटा यहाँ आ रहा है, actually डेटा जो है डेटाबेस में जा रहा है फिर घूम के यहाँ आ रहा है. So it's like you are typing anything, this is submitted to this page, this page, this process runs, the data is saved into the database, then this line runs, page is reloaded. If the page is reloaded, this else part executes, the data is taken from the database and displayed on the HTML. So here is working now. Okay, you can see post, get, post. Whenever I press add, this post is activated. Whenever I reload the page normally, you can see this is get. But when I submit this add, then you will see first step is post, then automatically next step is get. Why? Because this redirect is called. So ये हो गया हमारा CRUD. थक गए हम. ओके, सो मैं क्या डिज़ाइन करूं या डायरेक्टली Heroku पे डिप्लॉय करूं? यू हैव टू चॉइसेस नाउ. विच वुड यू लाइक, डिज़ाइनिंग और Heroku पे डिप्लॉयमेंट? व्हाट इंडेक्स शुड आई शो यू? द इंडेक्स पेज. यू हैव टू चॉइसेस. डिज़ाइनिंग कंज्यूम्स टाइम. आपको पता होना चाहिए, डिज़ाइनिंग कंज्यूम्स टाइम. So I can skip that portion and then I can update it secretly so that आप बाद में देख सकें. या फिर मैं ये कर सकता हूँ कि पहले बूटस्ट्रैप लिखूँ फिर ब्ला 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 करूँ. बट बूटस्ट्रैप में पता है क्या होगा, जब मैं बूटस्ट्रैप ऐड करूँगा तो ये जो HTML है इसमें बहुत कुछ ऐड करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें. तो लेट्स स्किप बूटस्ट्रैप फॉर नाउ. ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? ऊपर स्क्रॉल. हाँ, मैंने डिलीट का ऑप्शन रखा है तो पहले डिलीट का सेटअप कर लेते हैं फिर डिप्लॉय करते हैं, या डिलीट और एडिट दो ऑप्शन दे देते हैं. आई हैव टाइम. ओके, आगे बढ़ें. दो स्टेप्स बचे हैं, वो एक्चुअली फॉर्म का कोड शो तो कर रहे हैं, इतना छोटा सा तो है. यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने आइटम पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा ये बताया है, और आइटम डिलीट करेंगे तो क्या होगा ये बताया है. बस मैं ये करने जा रहा हूँ कि मैं दो फंक्शंस बनाने जा रहा हूँ, जिससे ये होगा कि अगर आप आइटम के नाम पे क्लिक करेंगे तो वो अपडेट हो जाएगा, मतलब एडिट करने के लिए ओपन हो जाएगा.
और अगर आप जो हैं डिलीट पे क्लिक करते हैं तो वो रिमूव हो जाएगा। तो आई विल चेंज माई दिस एरिया, लाइक मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा। पहले तो अगर आप आइटम के नाम पे क्लिक करते हैं, जैसे कि ये नाम आपको दिख रहा है, आपने क्लिक किया तो उसे एडिट करने का ऑप्शन आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक एड्रेस लिखेंगे, कहेंगे अपडेट। स्लैश अपडेट का मतलब है कि इट विल लुक इन द सर्वर एंड लुक कि कहाँ पे लिखा है app.root/update। अभी तो कहीं नहीं लिखा है app.root/update, तो ये ढूंढेगा। ओके, और अगर वो मिल जाता है एड्रेस तो उसको यूज़ कर लेगा। लेकिन मुझे इतना सिंपल नहीं लगाना है, उसके आगे मुझे ये रखना है कि अपडेट करे लेकिन उसकी प्राइमरी की आईडी से। तो अपडेट item.id का मतलब है कि एक URL आप देखोगे कि यूनिक URL जनरेट होगा, update 1 या update 2, जिस पर भी क्लिक किया है उसके नंबर आएगा। तो ये हो जाएगा आपका पहला वाला आइटम एडिट। और डिलीट के लिए मैं क्या करूँगा, डिलीट के लिए थोड़ी सी शक्ल चेंज करूँगा, लेकिन लेट्स नॉट लीव इट। डिलीट पे क्लिक करेंगे तो डिलीट का URL ढूंढा जाएगा। अभी है नहीं, दोनों URL बनाने जा रहे हैं अभी उसमें app.py में। ग्रॉसरी नहीं, आइटम लिखना होगा, item.id। सेम लॉजिक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, अपडेट पे क्लिक करोगे तो जिस भी आइटम पे क्लिक किया है उसकी यूनिक आईडी जो है वो अपडेट के फंक्शन में जाएगी, और डिलीट पे क्लिक करोगे तो डिलीट के फंक्शन पे जाएगी। तो इससे तुम्हारे HTML पेज में तुम्हें कुछ नहीं पता चलेगा। लेकिन अगर अब तुमने इस पर क्लिक किया एप्पल पे, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये बताएगा कि अभी ये पेज एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ऊपर देखो अपडेट 1 लिख के आ रहा है अगर आप ध्यान से देखें, और अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो अपडेट 4 लिख के आ रहा है, क्योंकि वो उसकी आईडी है। अपडेट 6 ऐसे ही डिलीट के लिए। तो मतलब हमने अपने फंक्शंस तो URLs तैयार कर दिया। अब हमें उसके लिए 2 फंक्शंस बनाने हैं डिलीट एंड अपडेट के लिए, जो कि बहुत ही ईजी हैं। लेट मी जस्ट शो यू। ऐप में गए, ये तो पूरी कहानी थी ऊपर की। नीचे आते हैं, root लिखेंगे, दिस इज़ शॉर्टकट, /update बताएंगे, और /update के बाद हम क्या बताएंगे, हम कहेंगे कि इसमें हर बार आईडी आएगी। आईडी आने का मतलब है वो इंटीजर टाइप की वैल्यू आएगी। तो int:id का मतलब है आइटम जो आएगा, मतलब जो आएगी वैल्यू वो इंटीजर टाइप की है और उसका नाम होगा आईडी। तो दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग। और दिस विल बी मेथड इक्वल्स टू, एस नहीं लगाया, मेथड्स इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट, कैपिटल में गेट एंड कैपिटल में पोस्ट। तो दिस इज़ app.root। फंक्शन का नाम होगा अपडेट, और फू की जगह कुछ नहीं होगा, फू हटा देते हैं, उसकी जगह आईडी रहेगा। मतलब ये जो वेरिएबल है यहाँ पास हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम कहेंगे कि जिस ग्रॉसरी की हम बात कर रहे हैं उसको ढूंढो, मतलब जो भी आईडी आपने भेजी है उसको ढूंढा जाएगा। ये दिस इज़ द नॉर्मल स्टफ, दिस इज़ लाइक हर वेबसाइट इसी तरीके से। जब भी आप अपने URLs में देखते हैं तो आपको तो जो दिखता है वो दिखता है, लेकिन बिहाइंड द सीन ऐसे एड्रेसेस बने होते हैं जो कि डायनेमिक URLs कहलाते हैं। ओके, यू विल सी। तो grocery.query से सारा डेटा तो निकल आता है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये सिंगल डेटा भी निकाल सकता है। गेट और 404 फंक्शन यूज़ करेंगे। इससे क्या होगा, इससे अगर कोई मतलब कोई ऐसा नंबर भेजा जाएगा जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है तो मैसेज आएगा 404 पेज नॉट फाउंड। और अगर आप सही नंबर भेजोगे तो ये उस पर्टिकुलर ग्रॉसरी की डिटेल निकाल के इस ऑब्जेक्ट में डाल देगा। ठीक है, तो grocery.query get 404 और 404 ये वाला फंक्शन जो है हम यूज़ करेंगे। फिर हम लिखेंगे अगर रिक्वेस्ट डॉट, एक्चुअली लेट मी जस्ट, या फिर लिख ही देते हैं इफ़ रिक्वेस्ट डॉट मेथड। अब जब आप एडिट करते हो किसी चीज़ को तो उसके लिए अलग सा फॉर्म बनाते हो, अगर वो नहीं बनाओगे तो आप एडिट कैसे करोगे। तो इसके लिए एक अलग पेज होगा छोटा सा, जो कि सिमिलर होगा हमारे पहले पेज की तरह से, लेकिन हम बस उसे कह रहे हैं कि लोड कर दो।
एंड हो गया db.session.commit। इस पर्टिकुलर लाइन से हो क्या रहा है कि जो भी नया नाम आप भेजोगे वो इस वेरिएबल में नेम वैल्यू पे रख दिया जाएगा, और इससे होगा क्या कि ग्रॉसरी वेरिएबल में नेम अपडेट हो जाएगा। फिर db.session.commit क्या करेगा, डेटाबेस में इस चीज़ को सेव कर देगा और ख़त्म। और फिर हम अपडेट पेज पे नहीं रहना चाहते हैं, हम जाना चाहते हैं होम पेज पे। रीडायरेक्ट स्लैश, होम पेज का निशान स्लैश होता है, और अगर कुछ नहीं हुआ तो एरर आ जाएगा, एक्सेप्ट रिटर्न देयर इज़ अ बिग एरर, there was a problem updating grocery item। ओके, और अगर आपने पेज नॉर्मली खोला है और फॉर्म सबमिट नहीं किया है, नॉर्मली ओपन मतलब क्लिक करके बस आप इस पेज पे इधर से घूम के उधर से गए हैं, तो इसका टाइटल होगा, अभी तक हम लोग टाइटल यूज़ नहीं कर रहे थे, अब हम टाइटल यूज़ करने जा रहे हैं, अपडेट डेटा, रिटर्न रेंडर टेम्पलेट। अब आप कहोगे रेंडर टेम्पलेट है कहाँ, तो ये जो रेंडर टेम्पलेट है उसका नाम है update.html, जो कि अभी बनी नहीं है, और क्योंकि ये बनी नहीं है तो फ़ौरन एरर आएगी। टाइटल इक्वल्स टू टाइटल एंड ग्रॉसरी, ये जो ग्रॉसरी इक्वल्स टू डेटा इक्वल्स टू ग्रॉसरी लिखा है, एक्चुअली इसका नाम है ग्रॉसरी इक्वल्स टू ग्रॉसरी। ओके, डन। तो व्हाट हैपेंड इज़ आई एम क्रिएटिंग अ न्यू पेज जिस पे आप अपने किसी भी आइटम को जिस पे आपने क्लिक किया है उसे एडिट कर सकते हैं, और एडिट करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, आप आराम से सबमिट कर सकते हैं फॉर्म। ये है update.html। मोस्ट ऑफ द कोड विल लुक लाइक सेम जो इंडेक्स में था, f extends सिंगल कोट base.html, और इसके बाद जो है आपका वही फॉर्म पिद्दा सा, कहाँ गया मेरा फॉर्म का कोड, ये रहा, एग्जैक्टली सेम चीज़, लेकिन f ब्लॉक कंटेंट नहीं लिखेंगे तो हम कुछ दिखा नहीं पाएंगे। ओके, अब होता क्या है कि जब आप इसे सबमिट करते हो, एक्शन, जब आप इसे सबमिट करते हो तो हम अपडेट करेंगे ग्रॉसरी आईडी पे, एंड यहाँ पे न्यू आइटम नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ आइटम रखते हैं बिकॉज दिस इज़ एन एग्जिस्टिंग आइटम। अपडेट करने के लिए हमारे पास पहले से आइटम है, यहाँ पे एग्जिस्टिंग ग्रॉसरी आइटम पड़ा रहेगा, और इसकी वैल्यू भी हम फिक्स कर देते हैं लेट्स सी कि चलता है कि नहीं। अब अगर मैं रिफ़्रेश करूँगा और ये नहीं चलता है तो इसका मतलब है मेरा सर्वर डेड हो गया है, क्योंकि मैंने इतने सारे जो कोड चेंजेस किए हैं अभी। रन कराया, चल गया, चल गया मतलब चेक कर लो, चल गया, URL लिख के आ जाना चाहिए, चल गया। तो यहाँ आओगे, रिफ़्रेश करोगे, गुड। अब मुझे ब्रेड का नाम, सॉरी कॉर्नफ्लेक्स में से S हटाना है, यहाँ क्लिक किया तो आप देखोगे एग्जिस्टिंग ग्रॉसरी आइटम कॉर्नफ्लेक्स, S हटाया, अपडेट किया और कॉर्नफ्लेक हो गया वो। तो इस तरीके से आप जो है अपने प्रोडक्ट के नाम चेंज कर सकते हैं। एप्पल, बनाना, चेरी। ओके, सो यू कैन सी मी, आई एम जस्ट क्लिकिंग दिस। जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ ऊपर यहाँ पे लिख के आ रहा है अपडेट स्लैश उसकी आईडी जो है वो grocery.id से आ रही है। फिर हो क्या रहा है कि ये फॉर्म बन के आ रहा है। लेट मी शो यू द फॉर्म कोड, इंस्पेक्ट करके दिखाते हैं। तो ज़्यादा जूम हो गया। तो इसमें जो है आपको दिखाई देगा कि फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है एक्शन अपडेट /4। मैंने लिखा था अपडेट, सॉरी यहाँ नहीं, अपडेट /grocery.id। तो ग्रॉसरी आईडी जो है वो 4 है और अपडेट जो है वो नॉर्मल वर्ड है। प्लस आपको यहाँ ऊपर टैब पे भी दिखाई देगा अपडेट डेटा फ्लास्क क्रड, बिकॉज
हम जो है टाइटल को भी भेज रहे हैं। ओके, इसके बाद इसके अंदर झांकिए तो आपको दिखाई देगा वैल्यू में कॉन्फ्लिक्ट लिख के आ रहा है, क्योंकि मैंने ग्रॉसरी नेम यहाँ दिया हुआ है। तो ग्रॉसरी वर्ड जो है वो मेरा वेरिएबल है, उसमें आईडी है, नेम है, सब कुछ है। और आप क्या कर पा रहे हैं, अब एडिट मार पा रहे हैं। तो दिस इज़ लाइक अपडेट फंक्शन विच हेल्प्स अस टू अपडेट द डेटा। तो क्रेड का मतलब होता है ना रीड राइट अपडेट डिलीट, सॉरी क्रिएट रीड अपडेट डिलीट। तो मैंने क्रिएट भी कर लिया, रीड भी कर लिया, अपडेट भी कर लिया, अब डिलीट करना है। तो मैं पहले लिख ले रहा हूँ, फिर करेंगे आप लोग बैठ के अलग से। डिलीट जो होता है बहुत छोटा होता है, बिकॉज डिलीट में आपको नया पेज नहीं बनाना होगा, बस डिलीट करना होगा। अपडेट में एम्प्टी ऐड हो रहा है, अपडेट में एम्प्टी ऐड हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ये जो चीज़ है request.form.getName, वो हमारे अपडेट में भी नेम इक्वल्स टू नेम होनी चाहिए। प्लीज़ मैच करा लो, ठीक है। और छोटी मोटी एरर्स हम देख सकते हैं कभी भी, स्क्रीनशॉट भेज देना। तो लेट्स राइट द डिलीट फंक्शन विच इज़ लाइक ए स्मॉलर फंक्शन दैट अपडेट app.root, शॉर्टकट यूज़ करना चाहिए था froot, एंटर। पाथ में इस बार जो है सेम लॉजिक लिखा जाएगा कि डिलीट स्लैश एंगुलर ब्रैकेट इंट आईडी आएगा, लेकिन वो इंटीजर टाइप के आईडीज़ आने हैं, ये बताने के लिए इंट कोलन आईडी लिखा जाता है। और उसके बाद जो है फंक्शन नेम क्या होगा, फंक्शन नेम फंक नहीं होगा, डिलीट होगा। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आईडी वेरिएबल एग्जिस्ट करेगा। ओके, कमिंग टू दिस, रिटर्न रेंडर टेम्पलेट कौन सी करनी है, कुछ नहीं करना है। तो अब करना क्या है, हमें करना ये है कि इसमें पोस्ट वोस्ट कुछ नहीं करना है, बस जो आइटम कहा है उसको ढूंढो, डेटाबेस में से निकालो, अगर वो है तो उसको डिलीट कर दो और रीलोड कर दो पेज को, बस इतनी सी बात। ओके, ट्राई db.session .delete this grocery item and db.commit session.commit and except अगर ऐसा हो जाता है, पहली चीज़ तो अगर ये हो जाता है तो रिटर्न रीडायरेक्ट टू द होम पेज, मतलब रीलोड द होम पेज, या वापस जाओ होम पेज पे। और नहीं होता है तो देयर वाज अ प्रॉब्लम डिलीटिंग डेटा, प्रॉब्लम लिखा हुआ है ऊपर। ओके, सो दैट इज़ डन, ख़त्म, कितना आसान था ये वाला। अब आप देखेंगे कि डिलीट जो है वो प्रोसेस बहुत आसान है। लेट मी जस्ट चेक कि मेरा सर्वर डेड हो गया, हाँ हो गया, रीरन और चल गया। मेरी बहुत सालों की प्रैक्टिस है, ये भी याद रखना। बैक किया, रिफ्रेश किया, so we have this cherry, I don't want cherry, remove cherry, delete। तो डिलीट करते ही बाय बाय हो गया, ये भी डिलीट, वो भी डिलीट, सब डिलीट। ऊपर आप देखो फटाफट आपका पेज रीलोड हो रहा है। बाय बाय, देयर इज़ नथिंग टू बाय नाउ, वाई, बिकॉज देयर इज़ नो ग्रॉसरी आइटम। ओके, एप्पल, banana and avocado. So now we can add stuff, we can remove stuff, we can clap, we can I think we can do this. We can do emojis. Okay, so this I can edit those emojis also. So because that is Unicode, तो आप जो है जो करना चाहें वो कर सकते हैं। If you give me a smiley, then I can update that. So that is CRUD, and CRUD के बाद अब बचा क्या, बस इतना बचा कि मैंने बस पेजेस को बहुत ही गंदा बनाया है। तो अब जो है हम फटाफट जो है गिट यानी कि हेरोकू को एक्टिवेट कर लेते हैं और अपने इस पूरे प्रोजेक्ट को उठा करके अब डाल देंगे हेरोकू पे। हेरोकू जो है हमें ऑनलाइन डिप्लॉयमेंट के लिए देगा। तो दैट्स दैट। अब कमिंग बैक टू हेरोकू, आपको पता होना चाहिए कि हेरोकू का आपको चाहिए होगा हेरोकू CLI, कमांड लाइन इंटरफेस। ओके,
Heroku CLI क्या होता है, जैसे हम लोग के सिस्टम में हम कमांड्स यूज़ कर रहे हैं अलग अलग चीज़ों के लिए, वैसे ही Heroku के लिए भी आपको कमांड्स यूज़ करनी पड़ती हैं। तो हम Heroku CLI को डाउनलोड करेंगे, विच इज़ बहुत छोटा सॉफ्टवेयर, 21 MB। ओके, यू हैव मैक के लिए ये कहानी होती है। 64 बिट इंस्टॉलर हमने क्लिक किया एंड मैंने डाउनलोड कर रखा है, तो डाउनलोड कर लिया 64 बिट इंस्टॉलर और उसके बाद इंस्टॉल कर दिया। इंस्टॉल होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, आपको नेक्स्ट करना है, फिर चाय पीने चले जाओ और फिर वापस आ जाना, ठीक है, तब तक इंस्टॉल हो जाएगा। फिर उबुंटू के लिए कमांड Heroku CLI जब इंस्टॉल हो जाता है तो अब हमें कमांड लाइन प्रोसेस करना होगा, Ctrl+L। हम हैं फ्लास्क के CRUD में। ओके, अब मुझे क्या करना होगा, हमें पहले एक्टिवेट करना होगा गिटहब वाला, हमें अपना वर्जन कंट्रोल एक्टिवेट करना होगा। तो हमें चाहिए git ignore फाइल। git ignore फाइल क्या होती है, इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ फाइल जिसके अंदर हम ये बताते हैं कि कौन कौन सी फाइल्स नहीं जानी है। जैसे ये पाई कैश फाइल होती है, दिस इज़ अ वेस्ट ऑफ फाइल, हमें नहीं चाहिए होती। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पे न्यू फाइल है उसे क्रिएट करेंगे और नाम रखेंगे git ignore। इग्नोर की स्पेलिंग होती है ये है git ignore फाइल, लेकिन इसमें हम कंटेंट नहीं ऐड करेंगे। What I will do is I will jump to this website called gitignore.io. This is a website for helping us. तो gitignore.io पे जाएंगे और बताएंगे कि मुझे फ्लास्क का मैं प्रोजेक्ट बना रहा था, मैं क्रिएट लिखूँगा आगे, तो ये क्या करेगा, फ्लास्क एंटर, और फ्लास्क के बाद मैं क्रिएट क्लिक करूँगा तो ये क्या करेगा, इट विल जनरेट मी अ फाइल। वो सारी चीज़ें बताएगा ये कि जो कि आपको नहीं यूज़ करनी होती हैं, दिखा रहे हैं, देख। तो gitignore.io पे फ्लास्क मैंने लिखा तो उससे हो क्या रहा है, इट्स लाइक creating a set of all the files that should be ignored मतलब जिनको यूज़ नहीं करना चाहिए। ऐसा होता है कि यहाँ पे आप काम कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट में, तो ऐसी भी फाइल्स बनती रहती हैं जिनको यूज़ नहीं करना होता है, और वो एक दो फाइल्स नहीं, बहुत हो सकती हैं। तो git ignore में हम वो सारी फाइल्स के नाम लिख देते हैं, वो आप हाथों से भी बैठ के लिख सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं, gitignore.io का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो वही मैं कर रहा था, ये रहा। अब इसमें बहुत कुछ दिया है, आई डोंट हैव टू वरी अबाउट इट बिकॉज इट्स ट्राइड एंड टेस्टेड। आप देख सकते हैं इसमें बता रहा है कि ये वाली लाइन नहीं, मतलब ये वाली फाइल्स नहीं यूज़ करनी है, डेटाबेस की फाइल्स नहीं लोड करनी है, तो ये जानता है कि क्या क्या नहीं करना है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि मेरी git ignore फाइल तैयार है, तो हम यहाँ जाएंगे अपने टर्मिनल पे और अब हम लिखेंगे git init। अब अगर आपको नहीं पता, अच्छा नहीं, उससे पहले एक और मैं फ़ाइल बनाऊँगा, मैं भूल गया था। Heroku के लिए एक फ़ाइल बनानी पड़ती है और वो फाइल कहलाती है proc फाइल। दिस इज़ लाइक अ सेटिंग फाइल। ओके, न्यू फाइल, इसका नाम रखेंगे proc फाइल। ये बनानी पड़ती है, ये Heroku के लिए स्पेसिफिक है, देखो आइकन भी आ रहा है उसका। ओके, और इसके अंदर हम बताएंगे कि हमारी वेबसाइट जो है वो एक मतलब हमारी जो वेब ऐप है वो एक हेल्पर लाइब्रेरी का इस्तेमाल यूज़ करेगी, यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न क्या है अभी बताता हूँ, यूनिकॉर्न ऐप, ये सिंटैक्स है एक्चुअली। ओके, तो ये प्रॉक फाइल जो है, इसमें वेब यूनिकॉर्न ऐप जो लिखा है, ये सर्वर मतलब हमारा जो प्रोजेक्ट है, क्योंकि हम ऑनलाइन भेज रहे हैं ताकि कहीं Heroku की वेबसाइट से कहीं से भी एक्सेस किया जा सके, तो ये यूनिकॉर्न जो है हमारे प्रोजेक्ट को कंप्रेस करने में हेल्प करेगा। ओके, और इसके लिए जो है मैंने रिक्वायरमेंट्स फाइल नहीं बनाई थी, मैं अब बना देता हूँ, requirements.txt। और हम फ्लास्क यूज़ कर रहे थे, फ्लास्क SQL Alchemy यूज़ कर रहे थे, हम यूनिकॉर्न भी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये हमें चाहिए यूनिकॉर्न। तो आप चाहें तो इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, और भी कोई लाइब्रेरी मैंने यूज़ की है, नो नथिंग। तो हम यहाँ जाएंगे और अब हम लिखेंगे पिप इंस्टॉल। ये मैं अपने फ्लास्क CRUD फोल्डर से लिख पाऊँगा, कहीं और से नहीं। -r requirements.txt, oops, Ctrl+C, Ctrl+F, Ctrl+C।
तो यूनिकॉर्न एक्चुअली मेरे में इंस्टॉल्ड है, तो मुझे करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब जो है रिक्वायरमेंट्स और TXT को चलाया तो वो यूनिकॉर्न जो भी इंस्टॉल करना था हो गया। अब मुझे क्या करना है, हेरोकू अगर मैंने इंस्टॉल कर रखा है तो मुझे हेरोकू लिखना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा लॉगिन। अगर ये आपने सही से इंस्टॉल किया है तो हेरोकू लॉगिन लिखते ही क्या होगा, थोड़ी देर में ये कहेगा कि कोई भी बटन दबाइए ताकि आप ब्राउज़र ओपन कर सकें। एंटर किया और प्रेस एनी की टू ओपन द ब्राउज़र टू लॉगिन, तो ये जनरेट किया, ये आपका लॉगिन का पेज आ गया। लॉगिन बटन दबाया, मुझे अपना पासवर्ड याद था, सब लॉग्ड इन है मेरा। मतलब यू हैव टू क्रिएट एन अकाउंट एट हेरोकू। इट्स अ फ्री अकाउंट, ऐसा कुछ करना नहीं होता है। यू हैव टू क्रिएट अ अकाउंट ऑन हेरोकू, फिर हेरोकू CLI डाउनलोड होगा। ठीक है, तो ये सब हो गया और मैं लॉगिन भी कर पाया हूँ। इसमें लिखा है लॉग्ड इन एज माई ईमेल एड्रेस। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक्टिवेट LS करके देखो, मेरी फाइल्स हैं स्टैटिक, टेम्पलेट्स, गेट इग्नोर, ऐप, fcred, प्रॉक फाइल, ये सब हैं। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इनिशियलाइज़ करूँगा वर्जन कंट्रोल गेट इनिट। इससे क्या होगा, ये बताएगा कि अब मेरा जो कोड है वो वर्जन कंट्रोल एक्टिवेट हो गया। फिर हम कहेंगे गेट ऐड डॉट, इससे क्या होगा, सारी फाइल्स ऐड हो जाएंगी मेरे गिट रिपोजिटरी में जो इम्पोर्टेंट हैं। फिर हम कहेंगे गेट कमिट -m क्लास ऑन संडे, एंटर। तो अब ये कह रहा है कि ये सारी फाइल्स को इसने कमिट कर लिया, मतलब सेव कर लिया। ये ऑनलाइन नहीं गया है, बस सेव कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि हम लिखेंगे हेरोकू, ये अब ऑनलाइन जा रहा है, क्रिएट फ्लास्क ऐप 2020 MPT, मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड नाम नहीं लिखना चाहिए, MPT। एंटर किया और ये क्या कर रहा है, ये मेरे प्रोजेक्ट को नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर, एंड विद अ लेटर और डिजिट कंटेन्स ओनली ब्ला ब्ला ब्ला, ओ सॉरी माय मिस्टेक, फ्लास्क ऐप मेजर प्रोजेक्ट ट्रेनिंग, एंटर। तो इसने क्या किया, इसने मुझे एक एड्रेस बना के दे दिया, flask-app-mpt.heroku.com, और अभी ये गया नहीं है ऑनलाइन। अभी आप अपने ब्राउज़र में चेक करिएगा, जब मैं इसे पुश करूँगा, गेट पुश हेरोकू मास्टर, and waiting इंस्टॉलिंग। ये क्या हो रहा है, ये हेरोकू पे सब अपडेट हो रहा है। पाइथन ऐप डिटेक्टेड और रिक्वायरमेंट्स और TXT के अंदर जो कहानी थी उसने देख ली और सब दनादन इंस्टॉल कर दिया। प्रॉक फाइल्स को देख लिया और ये देख लिया कि वो वेब टाइप की है, कंप्रेस, वो जो यूनिकॉर्न है वो कंप्रेस करना है सब कुछ, और लॉन्चिंग, एंड नाउ योर माई एप्लीकेशन इज़ नाउ डिप्लॉयड ऑन हेरोकू। ठीक है, इट्स लाइक देयर। अब आप क्या कर सकते हैं, आप इसे ओपन कर सकते हैं, मैं भी ओपन कर सकता हूँ। अगर मैं हेरोकू ओपन लिखूँगा और सही फोल्डर से कहूँगा तो मेरा ये प्रोजेक्ट लोड हो जाएगा। ये एड्रेस जो है flask-app-mpt, ठीक है, .herokuapp.com, ये अपने में टाइप करके चेक करके बताइए चल रहा है कि नहीं। मैं लिख दे रहा हूँ एड्रेस, चेक करके बताओ ये एड्रेस चल रहा है कि नहीं। सीताफल, नाइस। तो मतलब दिस इज़ नाउ लाइव, और अगर मैं इसको बंद कर दूंगा और मैं इसको भी बंद कर दूंगा, मतलब सब कुछ बंद कर दूंगा, तो भी ये चलता रहेगा, बिकॉज दिस इज़ लाइक ऑनलाइन। ओके, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट का जो मेन, डिलीट वाला फिर से समझा दीजिए। ओके, डिलीट, तो जसकिरण का डिलीट हो गया, समझा रहे हैं। डिलीट वाला जो HTML का लॉजिक है वो ये है कि जब आप
यहाँ पे क्लिक करते हैं आइटम पे, तो आइटम की आईडी जो है उसके साथ हमारा ये वाला एड्रेस कॉल होता है, ठीक है। और फिर हम कहते हैं ग्रॉसरी के अंदर क्वेरी करो और आइटम को निकाल के लाओ या एरर दो, ठीक है। तो ये जो आंसर आएगा वो इस वेरिएबल में चला जाएगा, तो जो भी ग्रॉसरी है वो ग्रॉसरी वेरिएबल में जा रही है। फिर हम कह रहे हैं db.session.delete, ये बना बनाया फंक्शन है, जो ये वेरिएबल था वो इस डिलीट फंक्शन में पास करो। तो ये ऑब्जेक्ट तो डेटाबेस का ही है, तो डेटाबेस में से ये डिलीट कर देता है और फिर हम सेव कर दे रहे हैं और कह रहे हैं कि रीलोड द होम पेज, रीलोड टू होम पेज। तो इट रीलोड्स टू होम पेज एंड अगर सब कुछ गलत होता है तो ये मैसेज आ जाएगा, लेकिन कुछ गलत नहीं हो रहा है इसलिए ये आ रहा है, ठीक है। गलत कब होगा मैं दिखा सकता हूँ। अगर मैं डिलीट पे जाऊँ और आइटम डिलीट हो जा रहा है, इट्स लाइक ग्रेट। लेकिन अगर आप /delete/39 लिखेंगे, 39 किसी चीज़ की आईडी तो होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, तो ये आएगा द रिक्वेस्टेड URL इज़ नॉट फाउंड, ओके। अगर आप /3 लिखेंगे तो जो है वो थर्ड आइटम रिमूव कर देगा, ओके। तो इस तरीके से जो है हमारा डिलीट वाला फंक्शन जो है बेसिकली चलता रहेगा सक्सेसफुली। ओके, वो जो नॉट फाउंड आया था वो 404 पेज था, उसको मैंने डिज़ाइन नहीं किया, वो अलग बात है, जिसको हम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो हमारा जो है 61 लाइंस का कोड है जो कि हमने लिखा है और उसमें हमने इतना सारा 3-5 किया है, जो कि पिछली वाली एप्लीकेशन से बड़ा है इन सेंस ऑफ कि आपको HTML एंड एवरीथिंग करना पड़ रहा है। प्लस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, सबसे आसान, हेरोकू पे डिप्लॉय करने के लिए आपने धड़ाधड़ कुछ कमांड्स लिखी और आपका फटाफट सब डिप्लॉय हो गया, ठीक है। 4-5 लाइनें लिखनी थी और वो हो गया। तो हेरोकू पे डिप्लॉय करने वाला स्टेप जो है मैंने बहुत तेज़ी से किया, तो हो सकता है आपसे मिस हो गया हो, तो मैं एक रीडमी फाइल यहाँ बना दे रहा हूँ सो दैट आपको याद रहे, readme.md, ठीक है। तो हम जो हैं हमने किया क्या, हमने हेरोकू के लिए जो स्टेप्स किए थे वो ये थे कि टू डिप्लॉय, मैं बाकी डेटाबेस नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। स्टेप 1, data.getIgnore फाइल, ठीक है। getIgnore फाइल, add content, sorry, ठीक है। ये पहला स्टेप था। फिर इसके बाद हमारा दूसरा स्टेप था क्रिएट अ प्रॉक फाइल, एंड उसमें web:/unicorn और उसके बाद मैंने लिखा था app:/app। ये web: का मतलब है कि वो वेब एप्लीकेशन है, यूनिकॉर्न app:/app, इसको कंप्रेस करो, ये बताया था मैंने प्रॉक फाइल में। फिर मैंने बताया था कि अगर आपसे मिस हो गया हो तो आप पिप इंस्टॉल यूनिकॉर्न करें। फिर आपको क्या करना होगा, हेरोकू अकाउंट क्रिएशन and then Heroku CLI डाउनलोड। फिर टर्मिनल में जाकर के Heroku लॉगिन, फिर टर्मिनल में ही get init, फिर टर्मिनल में फिर उसके बाद हमने क्या किया, गेट ऐड किया। फिर हमने क्या किया, गेट
गिट ऐड किया था ऐसे, गेट कमिट अपना मैसेज लिखा। फिर हमने क्या किया था, फिर हमने ये किया था कि हेरोकू क्रिएट ठीक है, आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं, इट कैन बी एनीथिंग। एंड फिर जो है हमने इसको डिप्लॉय किया था यूजिंग दिस